Hello student, good afternoon. Welcome in our next video. Student, we started civics chapter 5 judiciary. Before that we learn about the independent judiciary, the levels of judiciary system, and today we solve the practice question number 16. Okay, before that students, I explain about that how the judiciary system works. Means the judiciary works from three levels. Means this is divided into the three levels. For example, dispute resolution, judicial review, and upholding the law and enforcing fundamental rights. Okay, so our first question is that read the section what is an independent judiciary on page number 56 to 57 on the NCERT textbook and state whether the following statements are true or false. If false, write the correct statement in your notebook. So students, already I explained you that, and if you want that, I will send you the page from NCERT textbook. So our first statement is the legislature and executive can interfere in the work of the judiciary. So what is your answer? The legislature and the executive can interfere in the work of judiciary? So no, that is false. The legislature and executive cannot interfere in the work of judiciary. The judiciary system is totally independent. Next, courts are under the government and act on its behalf. No, that is also false. The court are under the government. No, it is not under the government, it is a separate, and it is not act on the behalf of the government. So that is false. Next, C number, the legislature and the executive play a key role in the appointment of judges. That is also false. The executive and legislature is not important for the appointment of the judges. Fourth, once appointed, it is very easy to remove judge. No, it is also false. No one can remove from the post of the judges. Means the legislature and executive cannot show any pressure on the judges. That is also false. E number, the misuse of power by the legislature and executive is checked by an independent judiciary. Yes, that is true. When the legislature and executive, if they misuse of their power, so the court, the judiciary system can check their mistakes over there, and they can remove them from their post also. Next one, F, anyone can approach the courts if their rights are violated. Yes, that is also true. According to our fundamental rights, 6 fundamental rights, it is our last fundamental rights to the constitutional remedies. Means if anyone is approached our or violated our any rights, means for example right to freedom, right to speech, practice in any religion, right of education, in this way if someone violated our fundamental rights, so we can move into the court. Okay, so see next, write a story about 70 words explaining what would happen if the judiciary was not independent. So अगर क्या होता कि हमारी judiciary system independent नहीं होती तो. So student, already I explained about that in the part of independent judiciary system. What we learn in that, I told you about that our independent judiciary system is totally independent. So if it is not independent, so it is the only puppet in the hand of politicians, the leader, and the government officers. It works only like a puppet. Means no one will get the fair trial on that. For example, if we see one story,
ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक स्टोरी देखते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मीना नाम की एक स्कूल टीचर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मीना नाम की एक स्कूल टीचर है और एक गवर्नमेंट स्कूल में वो जॉब करती है. शी इज़ वर्किंग गवर्नमेंट स्कूल एंड फ्रॉम 1 year she is not getting her salary, so she can move into the court. But if the judiciary system is not independent, okay, so the judiciary system will give the decision in the favor of that इंस्टीट्यूशन, ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशन का जो भी ओनर होगा उनके हक में वो डिसीजन देंगे, क्योंकि उन पर प्रेशर है किसका, पॉलिटिशियंस का और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का. तो वो मीना को फेयर ट्रायल मिलेगा क्या, यहाँ पर नहीं मिलेगा. दूसरा एक रिजल्ट अगर हम यहाँ पर ऐसा देखें, फॉर एग्जांपल सपोज एक पॉलिटिशियन है, एक लीडर है किसी पार्टी का, ठीक है, अभी उनसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है रास्ते पर और उनको पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है. बट जुडिशरी सिस्टम्स अगर खुद पॉलिटिशियन के जेब में है तो उनको फेयर ट्रायल देंगी क्या, नहीं देंगे. वो क्या करेंगे, उनसे दबाव में आकर, प्रेशर में आकर वो उनके साइड से ही रिजल्ट देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनको छोड़ देंगे. यानी ये क्या होगा, जो कॉमन पीपल है ये क्या होगा, हमारी इक्वालिटी को यहाँ पर धक्का पहुँचता है कि हम जब बोलते हैं ना वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, तो ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रूव नहीं होगा. वी ऑल आर नॉट इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, जैसे हमारी डेमोक्रेसी में किया गया है. तो ये डेमोक्रेसी को ही एक तरीके की हिलाने की बात हो जाएगी, ठीक है. यानी डेमोक्रेसी पर जिस तरह से लोग बिलीव करते हैं, जो की फीचर्स है डेमोक्रेसी का, वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, तो दैट स्टेटमेंट विल बी प्रूव्स इन फॉल्स. सो इन दिस वे, इसलिए तो जुडिशरी सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. अभी नेक्स्ट देखो, what is next? Read the cases given below and identify the branch of law under which they will fall. Indicate by writing their number in the correct box. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जो क्रिमिनल लॉ है और सिविल लॉ है ये समझने की ज़रूरत है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. सो एट वेरी फर्स्ट नाउ सी दैट I would like to explain criminal law and civil law. See here in NCERT textbook page number 56. So see that what is independent judiciary, it is over. See the next. What are the different branches of the legal system? So the above cases of death falls, means already we discuss on the dowry death means what, हुंडा बड़ी हम जिसको बोलते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल जब मैरिज सेरेमनी होता है तो जो लड़का होता है, दूल्हे राजा होता है, उनको एज अ गिफ्ट कुछ अमाउंट वगैरह पे करनी पड़ती है लड़के के पिता को. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारे डॉरी डेथ्स भी हमारे देश में होते रहते हैं. सो द कंसिडर इज़ अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. अब ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होगा क्योंकि इसको सब क्या करते हैं, एक तरीके का बढ़ावा ही देते हैं. अभी शादी जब हुई थी तब वहाँ पर 1 या 2 ही पर्सन थे क्या, नहीं, पूरी सोसाइटी थी और पूरी सोसाइटी के सामने ये बात हुई थी. सबको पता होता है शादी में कि कितना डॉरी मिला. कोई ये बात छुपा कर रखता है क्या, नहीं. इतना ही नहीं, जो लड़के का पिता होता है वो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलता है, यानी एक तरफ उसकी शान दिखाता है वो कि मेरे बेटे को 5 लाख का दहेज मिला, गाड़ी मिला, बंगला मिला, यानी एक प्राउड की बात होती है उसके लिए. तो वही सबको बताते फिरता है. तो जब सोसाइटी को पता है कि दहेज लेना एक एज अ क्राइम है, एक कानूनी गुनाह है, तो सब उसको अगेंस्ट क्यों नहीं जाते. तो दैट इज़ द क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी एंड इज़ अ वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ. ये क्रिमिनल लॉ है, ये वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ. इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील्स विद सिविल लॉ केसेस. ठीक है, अभी ये जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ये किसी न किसी तरीके से सिविल लॉ से जुड़े हुए होते हैं. सो सी दैट you read in chapter 4 of how new civil law passed in 2006. Civil law means related to the property laws, land in this way. So look at the following table to understand some of the significant differences between criminal law and civil law. अब यहाँ पर कुछ differences हम देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं criminal law. What is criminal law? कौन कौन से जुर्म इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जो क्राइम है वो क्रिमिनल लॉ में इंक्लूड होते हैं और वो किस तरह से उस पर प्रोसेस होती है. So see that
deals with conduct or acts that the law defines as offenses. Deals with conduct or act that the law defines as offense. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry or murder. For example, चोरी करना, ठीक है, harassing a woman to bring dowry यानी हुंडा दहेज वगैरह लाने के लिए उसको हरेसिंग करना. कैसे? फॉर एग्जांपल उसको टॉर्चर करना, फिजिकली मेंटली 3-3 4-4 दिन उसको टॉयलेट में बंद करके रखना, खाना नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने के लिए देना, और ऐसे कुछ सेंटेंस गाली गलौज बैड वर्ड यूज़ करना उसके लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो क्राइम. एंड मर्डर, सपोज कोई पर्सन किसी का मर्डर कर देता है, तो इन दिस वे ये जो सारे क्राइम है ये किस में आते हैं? क्रिमिनल लॉ में आते हैं. ठीक है, अभी उसका सॉल्यूशन देखो, उसके बाद उसकी प्रोसेस क्या होती है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर हो गया है, तो उसके बाद जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे करते हैं? इट इज़ यूजुअली बिगिन्स विद द लॉजिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR. FIR मीन्स व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी पहली रिपोर्ट. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरे ससुराल में मेरे साथ कोई टॉर्चर होता है, मैं पुलिस के पास जाती हूँ, पुलिस स्टेशन में, तो जो मैं बोलती हूँ दैट इज़ कॉल्ड FIR. पुलिस क्या करेगी? वो सब दर्ज कर लेगी, यानी केस फायर करेगी, FIR करेगी, दर्ज करेंगी अपने पास. तो मेरी ज़ुबान से जो भी निकलेगा मैं वहाँ पर मेंशन करूँगी दैट इज़ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विद अ केस इज फिल्ड विद द कोर्ट. दैट इज़ फर्स्ट मीन्स द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम. अभी पुलिस जो है जो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, द क्राइम आफ्टर विच केस इज़ फील्ड विद इन द कोर्ट. पहले वो मेरा FIR दर्ज करेंगी और उसके बाद उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि किस तरह से मर्डर किया गया है, कैसे, और उसके बाद वो उसको कहाँ प्रेजेंट करेंगी? इन द कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सेकेंड, इफ़ फाउंड गिल्टी, सपोज अगर कोई गिल्टी इसमें फाउंड होता है मर्डर में वगैरह डॉरी केसेस में, द एक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन. एक्यूज यानी जो आरोपी है, एक्यूज यानी आरोपी है जिसने ये क्राइम किया है, तो उसको कहाँ सेंड करते हैं? जेल में, और उसको फाइन भी भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट क्राइम. अलग अलग क्राइम है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द क्राइम ये फिक्स किया गया है. सो दैट इज़ क्रिमिनल लॉ. ठीक है. अभी नेक्स्ट देखो, सिविल लॉ. सिविल लॉ मीन्स व्हाट? डील्स विथ एनी हार्म और इंजुरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल्स. डील्स विथ एनी हार्म ऑफ इंजुरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. किसी के अगर पर्सनल राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स, उसको अगर हम इंजोर्ड करते हैं, उसके हक को, ठीक है, या फिर उसको छीनने की कोशिश करते हैं, सो दैट इज़ सिविल लॉ. फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ लैंड, ज़मीन का बेचने वाला कोई मैटर हो. ठीक है. नेक्स्ट, परचेस ऑफ गुड, कोई चीज़ खरीदने से रिलेटेड हो. रेंट मैटर्स हो, किराया भरने से रिलेटेड. एंड डिवोर्स केसेस, हस्बैंड वाइफ में जो भी डिवोर्स केसेस चलते हैं वो सब कहाँ चलते हैं? सिविल लॉ में चलते हैं. ठीक है. अभी उसके बाद प्रोसेस क्या होती है देखो, अ पेटेंट हैज़ टू बी फिल्ड विथ बिफोर द रिलीवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली. अभी जो अफेक्टेड पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अभी सपोज अगर मुझे डिवोर्स चाहिए मेरे हस्बैंड से, तो ये जो केस है सिर्फ उन्हीं को केस में मीन्स उन्हीं के नाम पर ये पेटेंट किया जाएगा, और जो भी पार्टी है उन्हीं को वहाँ पर कोर्ट में पेश होने के लिए बोला जाएगा. इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस. लैंडलॉर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट मैटर है, किसी को किराए पर दिया है, तो उसका जो ओनर होगा या तो वो केस फाइल करेगा, या फिर जो टेनेंट है यानी जो भाड़ेकरू है वो केस फाइल करेगा. ठीक है. इन दिस वे द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ as for instance in a case between a landlord and tenant. अभी दोनों के बीच में जो भी है मैटर वो कोर्ट सॉल्व करेगा और एक फेयर ट्रायल यहाँ पर देगा. द कोर्ट कैन ऑर्डर टू फ्लैट टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड. अभी ये जो कोर्ट इसमें क्या करेगा, फॉर एग्जांपल अगर ओनर के साइड में अगर ये केस लगता है, ओनर के साइड में अगर लगता है, तो वो टेनेंट को क्या बोलेगा कि आपको पूरा किराया देना पड़ेगा, जितना है उतना. लेकिन अगर टेनेंट के साइड में ये केस जाता है, उसके साइड में रिजल्ट लगता है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लैट उसको
उसको दे देगा, सौंप देगा रहने के लिए। सो इन दिस वे जो फेयर ट्रायल है वो कोर्ट उसको देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर समझ में आया कि क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ मीन्स व्हाट, हमारा जो क्वेश्चन था। सो इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये दोनों वीडियो देखने बहुत ज़रूरी है, पहला फर्स्ट टुडेज एंड टुमारोज। सो स्टूडेंट्स दैट question, third number question we will solve in our next period. Okay, thank you, have a nice day.